वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले तमाम जिंदगी के ऐसे एस्पेक्ट थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट आइडिया एंड हाउ योर लाइफ विल बिकम अ बेटर एंड हैप्पी लाइफ। अब लिबरल्स की बारी आ गई है। दे आर ऑलवेज हैप्पी गो लकी, व्हिच इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। द पैशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड टुडे यू विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट बिकॉज 10th हाउस मून इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट। सो career wise, for a change, your focus is more towards your career, which will help you to grow. You could be getting a lot of unexpected gains because of initiative. There could be some gains which you have never thought of, which is good for you, and there could be something which could be coming to you unexpectedly as well, and this is a time to learn. वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए स्पिरिचुअलिटी इज द की। द मोर स्पिरिचुअल यू आर, द मोर हैप्पीनेस विल कम योर वे, द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेस स्ट्रेस वुड बी देयर, which is good. You may come across with people who could be good for your life. That means this is a time for some partnership, including your wife or your spouse. So it could be something one of the best time. There is a lot of gains coming through Saturn, which has come into your 11th house and clearly promising a lot of gains because of your initiative and helping needy and poor. Dhanu Rashi yani Sagittarius. Sagittarius need to understand that every day is not a Sunday, so you need to just go with the flow, which is very important. Today you could learn something which will help you to understand yourself, so this is a time to look within, which is a very good option. And I think there could be some gains because of your traveling. Colleagues and your subordinates would support you today. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लोग आपको सपोर्ट कब करेंगे, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास नीरज का, और डॉक्टर नीरज की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1976, टाइम ऑफ बर्थ इज 1:30 AM, आधी रात को पैदा हुए हैं डॉक्टर साहब, और जानना चाहते हैं कि व्हेन वुड बी माय बेस्ट टाइम इन लाइफ बी। बिल्कुल 36th ईयर चल रहा है और 36वें साल में 12 × 3 is 36। आप तो बायोलॉजी से पढ़े, मैथ्स में सिखाया जाता है 12 × 3 is 36। हर 12 साल में द पर्सन वुड बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन 12 years, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके किंतु परंतु यहाँ पे आ गया है, बट भी लग गया है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि शनि में केतु की दशा सितंबर से शुरू होगी 1 साल, और ये 1 साल आप जिससे भी प्यार करेंगे उसकी शादी किसी से हो जाएगी। तो ऐसे में आप जस्ट फ्लो के साथ चलिए, इट इज़ नॉट ए वेरी हैप्पी टाइम। तो एक्सपेक्टेशन अपना कम कर लीजिए बिकॉज यू आर ए मैन हु हैज़ लॉट ऑफ पैशन, यू आर ए मैन हु हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, you have a lot of desires as well, but sometimes they say no decision is better than bad decision. Sometimes you have to go with the flow, sometimes you have to lie low. From October next year it would be one of the best time. Saturn and Venus would be a Raj Yoga, and those 3 years would be one of the best 3 years you will get, and you will get what you want, which is the best thing about you. You can wear an emerald, you can wear a diamond. Try to learn some meditation, some vipassana, some sadhana that will make you more intuitive because you are intuitive. Whatever is beautiful and best you will get it, but try to create some harmony at home. You need to crack some jokes with your wife and that will change your life. I wish you all the best. अगला सवाल है हमारे पास शिराज का, और शिराज खान की डेट ऑफ बर्थ है 15th October 76, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning, और शिराज जानना चाहते हैं कि when would be my best time come in life and when this stressful phase will be over and what will be my future. 35 आपकी भी हो चुकी है शिराज। हॉरोस्कोप कह रहा है कि शनि में चंद्रमा की दशा चल रही है। नाम तो शायद सुना नहीं होगा आपने, क्योंकि सैटर्न और मून दोनों दोस्त नहीं हैं और मैं आपका दोस्त हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जब एक साथ सैटर्न और मून जब इकट्ठे होते हैं, चाहे वो ट्रांजिट में हो जिसको हम शनि की 7.5 कहते हैं, जो लोगों की राह भटका देती है, या दशा में इंसान को स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इट इज जस्ट ए फेज। ये दशा नवंबर तक चलेगी, उसके बाद पिक्चर बदलेगी, और नवंबर भी अगले साल की बात हो रही है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एनर्जी बहुत है, प्लानर अमेजिंग है, ब्यूटीफुल भी बहुत हैं आप, और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एजुकेशन कभी ब्रेक नहीं होगी, इवन एट दिस एज यू विल कीप ऑन लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, विच इज़ वेरी गुड। परफेक्शनिस्ट हैं आप, गलती होने की कोई संभावना ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन एक गलती आप कर जाते हैं जब आपके पास इबादत का टाइम नहीं होता है। तो अगर आप डेली प्रेयर्स करेंगे, इफ़ यू कैन डू योर प्रेयर्स रेगुलरली, खुद और खुदा पे यकीन रखिए, दूसरों की मदद करते रहिए। एक एमरल्ड और डायमंड आपको सूट करता है, नीलम को भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है शिराज, मैं नीलम स्टोन की बात कर रहा हूँ। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, ऊपर वाले पे यकीन रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मकर राशि की बारी आ चुकी है, और आज मकर राशि कह रहे हैं कि आज वो आप किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे हो सकता है। यू कुड बी गेटिंग सम न्यू प्रपोजल्स, यू कुड बी गेटिंग सम न्यू ऑप्शंस विच वुड चेंज योर लाइफ। लक इज सपोर्टिंग यू, विच इज गुड। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी राहु के 11वें घर में विचरण करने से आपको मिल रहे हैं, और आज आपको कोई अवार्ड भी मिलने की संभावना लग रही है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए आज एक it would be a beautiful day for you. You are feeling good and positive about everything, which is very good. You are planning to invest. I think this is, I'm repeating since many days, because it could be one of the best time for you. You are looking for doing something very big in life, and I think the time has come which will help you to explore a lot of avenues as per your liking. There could be some delays, so need to have some patience. That's it. Meen Rashi yani Pisces. Pisces ke liye today you will fall in love, and love is good if you are unmarried. If you are married, then you need to understand that you need to create that harmony at home, which is very important.
You could be getting gains because of your initiative, because of your planning, because of your passion, and today you would be doing something significantly, and that will change your life as well. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदलेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास राजेश का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1991, टाइम ऑफ बर्थ इज 8:30 in the morning। एंड राजेश जानना चाहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, नो फोकस, आई वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, टेल मी हाउ एंड व्हेन इट विल बी। 21 आपके चुकी राजेश, शनि में केतु की दशा चल रही है, इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दशा वो होती है जो मैं कहता हूँ कि ब्ला ब्ला ब्ला, यानी जो भी आपको हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो दशा होती है जब इंसान टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका मन नहीं लगता है। तो जहाँ भी आपका मन लगेगा वहीं से आपको शादी का कार्ड आ जाएगा। तो ऐसे में आप कुछ भी मत करिए, फ्लो के साथ चलिए। यू आर ए पीस लविंग पर्सन, यू आर ए पर्सन हु इज़ अ वाइज पर्सन, यू हैव नो आइडिया हाउ टू स्पेल डिप्लोमेसी, यही एक वीकनेस है आपकी, थोड़ा सा टैक्ट यूज़ करिए। नवंबर तक ये टाइम है, उसके बाद जो आप चाहेंगे, जिससे आपको प्यार होगा वो सब आपका होगा। दैट मीन्स इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट 3 years। थोड़ा सा मेडिटेशन करना सीखिए, दैट विल हेल्प यू टू फोकस इन योर करियर, इन योर एजुकेशन। हॉरोस्कोप इज गुड, एक येलो सफायर और पर्ल आपको सूट करता है, दैट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। गो विद द फ्लो, हैव फेथ इन गॉड। राजेश, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप भी जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कब बदलेगी आपके हिसाब से, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का आखिरी ईमेल है हमारे पास सेलिना का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1984, टाइम ऑफ बर्थ इज 12:41 AM, आधी रात को पैदा हुई है सेलिना बेसिकली। और जानना चाहती हैं कि व्हेन वुड बी माय बेस्ट टाइम इन लाइफ बी एंड व्हाट वुड बी माय हाउ वुड बी माय मैरिड लाइफ। देखिए सेलिना, ज़िंदगी में हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, तो प्यार है किसी और का तो चाहता कोई और है। बहुत सारे गाने और गज़लें शायरों ने लिखी हैं, और आपके हॉरोस्कोप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गज़ल आपको भी बहुत पसंद है, बहुत सारी, कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, बिकॉज बहुत सेंसिटिव हैं आप लोग, आप सब पे ट्रस्ट करती हैं और लोग आपको बिट्रे कर देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए। ट्राई टू ग्रो अप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, दैट मीन्स यू आर ए लर्नर, you will always feel the hand of God, you have the ability to convince people, you could be doing something good into sales, banking, finance, accountancy or management, that is your forte. But because Moon and Rahu, they are together, you are vulnerable for some kind of hurt. The day you were born, it was lunar eclipse, and people born around that time, they become very, very sensitive. So need to learn the meditation, which is very important, Selena. You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire. Horoscope is good, you are heading for a good time as well, but you need to be happy and positive, because that will create exactly the environment you will look for. Have faith in God. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।